Hello students, welcome to the YouTube channel of Science Zone. My name is Suman Pandey and this is the fourth video of chapter haloalkanes and haloarenes. In the previous video, we already completed the preparation of haloalkanes from hydrocarbons. Now, in this video, we will study the preparation of haloarenes from hydrocarbon. We will discuss four methods of preparation of haloarenes. The first method is from benzene or benzenoids like toluene by electrophilic substitution reaction, that is like chlorination or bromination. In second method, we will use benzene diazonium chloride to prepare chlorobenzene or bromobenzene by Sandmeyer reaction. In third method, we will again use benzene diazonium chloride to prepare chlorobenzene or bromobenzene by Gattermann reaction. And in the fourth method, we will prepare fluorobenzene from benzene diazonium chloride by Ball-Schiemann reaction. And at last, we will discuss two halogen exchange reactions also. First is the preparation of iodoalkanes from haloalkanes by Finkelstein reaction. And the second is the preparation of fluoroalkanes from haloalkanes by Schwarz reaction. But before that, if you are new in this channel, then please subscribe the channel to get regular notifications of all newly uploaded videos and also like and share the videos. So let's start the video from our first topic, that is preparation of haloarenes by electrophilic substitution reaction of benzene. Preparation of haloarenes from benzene. So in this topic we will study the preparation of aryl halides, that is haloarene, by electrophilic substitution reaction of benzene. So for example, we can do chlorination or bromination reaction of benzene by using dihalogen gases like chlorine or bromine in the presence of catalysts like Fe or FeX3, or sometimes we can also use AlX3, which is also a Lewis acid, and during this process electrophilic ion, that is X plus ion, is produced. This is the first step of the reaction. Now in the second step, this electrophilic ion, that is electrophilic reagent, attacks on the benzene ring. अब हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग के all the carbons जो हैं they are sp2 hybridized and they all contain pi electron cloud. Now ये जो X plus ion है, that is electron deficient, ये इन pi electron cloud containing कार्बन पे अटैक करेगा और उनमें से किसी एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा, because all the carbons are equivalent. Now जिस कार्बन पे वो अटैच होगा that carbon becomes sp3 hybridized, जिसके कारण नेबरिंग कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, that is अरेनियम आयन, जिसे हम लोग साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल आयन भी बुलाते हैं, that is बेंजीन रिंग कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज. नाउ ये जो अरेनियम आयन है, इट लूजेस इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर. यस, इनके पास रेजोनेंस है because of which they are stable, but they loses its aromatic character. So in third step क्या होता है कि अगेन अपनी aromatic character को रिगेन करने के लिए बेंजीन अपने अंदर से H+ को रिमूव कर देता है एंड इन द प्लेस ऑफ H+, X+ वहां अटैच हो जाता है. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि H+ इलेक्ट्रोफाइल को X+ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है. सो इसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बुलाते हैं. नाउ ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. इसके एक्चुअल रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे हम लोग ब्रोमोबेंजीन के हेल्प से इस रिएक्शन की सिंपल मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल हम यहां देख सकते हैं कि ब्रोमोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रोमिनेशन ऑन बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 एज अ कैटालिस्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 303 to 313 केल्विन. अब यहां देख सकते हैं यहां ब्रोमीन के मॉलिक्यूल में से एक ब्रोमीन एटम बेंजीन रिंग की तरफ मूव करेगा और यहां से एक हाइड्रोजन एटम ब्रोमीन की तरफ मूव करेगा. नाउ ब्रोमीन और बेंजीन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म ब्रोमोबेंजीन, व्हाइल हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का नेक्स्ट एटम कंबाइन होके HBr फॉर्म करेंगे. नाउ ये इस रिएक्शन का एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जो हमें समझने के लिए इजी है, लेकिन इसका एक्चुअल रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है जिसके कारण अरेनियम आयन फॉर्म होता है. एंड थर्ड स्टेप में बेंजीन रिंग के अंदर से H+ आयन रिमूव होता है, दैट इज डीप्रोटोनेशन ऑफ अरेनियम आयन, जो कि
आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में होता है, और इन स्टेप्स को समझने के लिए वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन बाय द ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 कैटालिस्ट। नाउ इस रिएक्शन मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नाउ यहां पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज Br+। सो हम लोग Br+ के फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। नाउ फॉर दैट वी विल राइट द इक्वेशन। सो इनिशियली हमारा Br2 दैट इज हेलोजन, Br2 जो है ये रिएक्ट करता है FeBr3 के साथ दैट इज आवर लुईस एसिड। सो दैट इज आवर डाइहेलोजन Br2 एंड FeBr3 is our Lewis acid. Now Lewis acids are capable of accepting electron pair. So Br2 मॉलिक्यूल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये Fe की तरफ मूव होगा एंड FeBr3 जो है ये एज अ Lewis acid इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। नाउ इससे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा दैट इज Br डैश Br एंड FeBr3। और यहां पे हमारा जो सेकंड Br है इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर Fe की तरफ मूव किया है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव एंड Fe पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड है एक्चुअली इट विल बी अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ एज वी नो दैट कि ब्रोमीन जो है ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करना नहीं चाहेगा, सो ये क्या करेगा, ये नेबरिंग ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एंड फाइनली नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारा जो ब्रोमीन एटम है वो सिंगल डिटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा Br+, एंड उसके साथ हमारा जो फॉर्म होगा दैट विल बी FeBr4-। नाउ यहां पे जो हमारा Br+ आयन फॉर्म हुआ है दैट इज X+ आयन, हेलोजन आयन। दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। नाउ ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये हमारे सेकेंड स्टेप में बेंजीन पे अटैक करेगा, और यही हमारे बेंजीन के H+ को सब्स्टिट्यूट करेगा, जिसके कारण इस रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बुलाते हैं। नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन मैकेनिज्म इज फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम आयन दैट इज कार्बोकैटायन। नाउ ये जो कार्बोकैटायन है या अरेनियम आयन है इसे हम लोग साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल कैटायन भी बुलाते हैं। नाउ इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो बेंजीन है इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अवर बेंजीन। नाउ इस बेंजीन के अंदर हम देख सकते हैं कि ऑल द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और हर एक कार्बन पे आप देख सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है। नाउ इस बेंजीन पे हमारा जो ब्रोमीन प्लस आयन है दैट इज अवर इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा। अब ये अटैक किसी भी कार्बन पे कर सकता है बिकॉज ऑल दी कार्बन्स आर इक्विवेलेंट। सपोज कि इसने इस फर्स्ट कार्बन पे अटैक किया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि Br+ जो है इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए जो ये फर्स्ट कार्बन है ये नेबरिंग कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नाउ सेकेंड स्टेप में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड आएगा दैट विल बी बेंजीन, जिस पे ब्रोमीन अटैच हो चुका है एंड अलॉन्ग विद दैट हाइड्रोजन एटम इज ऑल्सो प्रेजेंट। और ये जो पाई जो इलेक्ट्रॉन था जो मूव हो चुका है, जिसके कारण अब यहाँ पे इस कार्बन पे सेकेंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड बाकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन वो एज इट इज अपनी पोजीशंस पे रहेंगे। नाउ जिस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है दैट इज ऑर्थो पोजीशन। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो चार्ज कैरी करना नहीं चाहता है, सो ये जो पॉजिटिव कार्बन है वो नेबरिंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नाउ इसके कारण एक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन चालू हो जाएगा। सो सेकेंड स्टेप में हमारा जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा दैट विल बी बेंजीन रिंग, जिस पे अब हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो यहां शिफ्ट हो चुका है। सेकेंड पाई बॉन्ड अपनी एज इट इज पोजिशन पे है, ब्रोमीन अटैच्ड है, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है एंड जो इस बार पॉजिटिव चार्ज है वो मूव हो चुका है ऑन दिस पैरा पोजिशन जो कि बॉटम कार्बन है।
नाउ अगेन फिर से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, क्योंकि जो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है ये नेबरिंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो अगेन एक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, जिसके कारण नया स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग जो है इस पे अब जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव हो चुका है। सेकेंड पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन पे एज इट इज है, इस पे ब्रोमीन और हाइड्रोजन एटम अपनी पोजीशंस पे अटैच्ड हैं, और इस बार जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव हो चुका है ऑन अगेन ऑर्थो पोजीशन। नाउ ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि जिन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है दीज कार्बन्स आर एक्चुअली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कार्बन्स, और जिस कार्बन पे हमारा ब्रोमीन एटम अटैच हो चुका है, नाउ दिस कार्बन बिकम्स sp3 hybridized carbon. All these carbons are actually sp3 hybridized carbon. Now because of which we can say that कि अब ये जो बेंजीन रिंग था ये अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर लूज कर चुका है। सो फाइनली हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जो बेंजीन रिंग है अब ये बदल चुका है अरेनियम आयन में, जहां पे पॉजिटिव चार्ज तीनों कार्बन पे रोटेट होता रहता है और फर्स्ट कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन एटम अटैच हो चुका है। ना अब ये अरेनियम आयन जो है ये थर्ड स्टेप के अंदर अगेन अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को रिगेन करने के लिए अपने अंदर से H+ आयन को रिमूव करेगा फ्रॉम द कार्बन विच इज एक्चुअली नाउ sp3 hybridized. Now the third step of this reaction mechanism is deprotonation of areninium ion, that is the carbocation formed in the सेकेंड स्टेप। और यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सेकेंड स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था दैट इज दिस स्ट्रक्चर। यहां पे हमारा जो पॉजिटिव चार्ज था इट वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 3 कार्बन एटम्स, दैट इज द कार्बन ऑफ 2 ऑर्थो पोजिशंस एंड द 1 ऑन द पैरा पोजिशन। नाउ इस कार्बोकैटायन के अंदर से जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये अगेन अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर को रिगेन करने के लिए अपने अंदर से इस H एटम को रिमूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ H+, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अगेन बेंजीन रिंग के अंदर अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अगेन बेंजीन का 3 पाई बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड हमारा ब्रोमीन एटम उसके ऊपर अटैच हो जाएगा। ना अब ये जो H+ आयन यहां से रिमूव हुआ है, इस H+ आयन को एक्सेप्ट कौन करेगा? सो ये मूव हो जाएगा टू FeBr4- आयन, जो कि हमारे फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ था। अब ये H+ आयन को FeBr4- अपने अंदर से एक Br- डोनेट करेगा, जिसके कारण ये दोनों कंबाइन होके HBr फॉर्म करेंगे, जो कि हमारा बाई प्रोडक्ट था। और फाइनली जो हमारा FeBr4- था ये कन्वर्ट होके FeBr3 में फॉर्म हो जाएगा, जो कि हमारा कैटालिस्ट था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैटालिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, ये ओनली यूज होता है एंड फाइनली ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में अगेन हमें मिल जाता है। सो दिस इज इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सो दिस वाज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन बाय डायरेक्ट ब्रोमिनेशन रिएक्शन। Preparation of haloarenes from benzenoids. So what is benzenoids? So benzenoids are actually derivatives of benzene, यानी ऐसे कंपाउंड्स जहां पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, लाइक टॉलिन, एनिलीन, फिनॉल एक्सेट्रा। अब यहां पे हम लोग जो बेंजेनॉइड यूज करने वाले हैं इट इज टॉलिन, और हम लोग जो यहाँ रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं दैट इज ब्रोमिनेशन रिएक्शन एंड क्लोरिनेशन रिएक्शन। सो फ्लोरिनेशन एंड आयोडिनेशन रिएक्शन को हम लोग स्टडी क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज ये डायरेक्टली बेंजीन पे पॉसिबल नहीं है। इन केस ऑफ फ्लोरीन द रिएक्शन इज हाईली स्पॉन्टेनियस and in case of iodine it is relatively slow. Yes, we can prepare fluorobenzene or iodobenzene from benzene diazonium chloride salt, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे भी हम लोग जो रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म इट इज वेरी सिमिलर टू प्रीवियस वन। यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप में हमारा इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन होगा दैट इज X+ आयन। अगर आप क्लोरीन मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो आप Cl+ आयन फॉर्म करेंगे, अगर आप ब्रोमीन मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो आपका Br+ आयन फॉर्म होगा, दैट विल बी लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इन आयंस को फॉर्म करने के लिए आप जो कैटालिस्ट यूज करेंगे यू कैन यूज Fe
और Fe(X3), और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये आप Al(X3) भी यूज कर सकते हैं, वो भी एक लुईस एसिड है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नाउ इस फर्स्ट स्टेप के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करके अरेनियम आयन फॉर्म करेगा सेकंड स्टेप में, जिसे हम लोग कार्बोकैटायन बुलाते हैं। और इस अरेनियम आयन के अंदर हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, वो sp2 से बदल के sp3 हो जाता है, जिसके कारण कार्बन की जो एरोमेटिक कैरेक्टर है रिंग की, वो लूज हो जाएगी। सो अगेन जो है एरोमेटिक कैरेक्टर को रिगेन करने के लिए वो क्या करेंगे, वो अपने अंदर से एक H+ आयन को रिमूव करेंगे और उसकी पोजीशन पे हमारा X+ आयन एंटर हो जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि H+ जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके रिमूवल के बाद X+ दैट इज हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। सो एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टॉलिन है। टॉलिन के अंदर अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो हमें प्रोडक्ट में ऑर्थोक्लोरोटॉलिन या पैराक्लोरोटॉलिन मिलेगा, एंड बाय प्रोडक्ट में हमें मिलेगा HCl। सिमिलरली अगर हम लोग टॉलिन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो हमें प्रोडक्ट में ऑर्थोब्रोमोटॉलिन या पैराब्रोमोटॉलिन मिलेगा अलॉन्ग विद बाय प्रोडक्ट HBr। now आप इस रिएक्शन के अंदर देख सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट में दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया, वन इज ऑर्थो एंड सेकेंड वन इज पैरा। सो ये प्रोडक्ट की जो प्रिडिक्शन है वो हमें पता चलेगी बाय द रिएक्शन मैकेनिज्म, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट साथ में मिलेंगे, वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। अब इन मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे? सो दे कैन बी इजिली सेपरेटेड बिकॉज ऑफ देयर लार्ज डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, एंड द रीजन इज देयर स्टेबिलिटी। जनरली कहा जाता है कि जो पैरा प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे ये जो दोनों ग्रुप्स हैं दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे हैव 180 डिग्री एंगल बिटवीन देम, बिकॉज ये ऑपोजिट साइड्स पे अटैच हैं, इसलिए इनके अंदर रिपल्शन बहुत कम होगा, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, दैट मीन्स इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, दे आर मोर स्टेबल। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, इन प्रोडक्ट्स के मिक्सचर को हम लोग इजिली सेपरेट भी कर सकते हैं। नाउ आगे हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ टॉलिन। सो यहाँ पे हम लोग टॉलिन का क्लोरीनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट FeCl3, एंड प्रोडक्ट में हमें ऑर्थोक्लोरोटॉलिन एंड पैराक्लोरोटॉलिन मिलेगा। अब ये जो रिएक्शन है एक्चुअली ये 3 स्टेप रिएक्शन है, जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन मैकेनिज्म का दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो फर्स्ट स्टेप में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करेंगे। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इट विल बी Cl+ आयन। सो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्लोरीन आयन जो है ये फॉर्म होगा। सो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्लोरीन मॉलिक्यूल दैट इज Cl2। अब ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे कैटालिस्ट के साथ, जो कि है हमारा FeCl3। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि FeCl3 है लुईस एसिड, दैट इज ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। सो ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसमें से क्लोरीन के एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन पेयर FeCl3 की तरफ मूव करेगा, जिसके कारण एक हमें इंटरमीडिएट मिलेगा जो कि होगा क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन एंड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद FeCl3। अब यहाँ पे जो FeCl3 है इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, बिकॉज ऑफ विच इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड जो हमारा क्लोरीन एटम जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्लोरीन एटम पॉजिटिव चार्ज कैरिंग है वो नेबरिंग क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और फाइनली हमारा जो नया प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी Cl+, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा अलॉन्ग विद FeCl4-। अब यहां पे जो हमारा Cl+ आयन फॉर्म हुआ है दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये हमारे सेकेंड स्टेप के अंदर हमारे बेंजीन रिंग पे अटैक करके अरेनियम आयन फॉर्म करेगा, और यहां पे जो हमारा FeCl4- फॉर्म हुआ इट इज अ वीक बेस। ये हमारे लास्ट स्टेप दैट इज थर्ड स्टेप के अंदर जो H+ आयन प्रोड्यूस होगा उसको Cl- डोनेट करेगा, जिसके कारण हमारा बाय प्रोडक्ट HCl फॉर्म होगा। नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन मैकेनिज्म इज फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम आयन। सो अरेनियम आयन को फॉर्म करने के लिए एक्चुअली हमें सबसे पहले टॉलिन एंड इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्ट कराना है। सो टॉलिन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज बेंजीन रिंग, जिसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, एंड इस पे 3 पाई बॉन्ड्स हैं, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इवनली कार्बन्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। नाउ इस पे हम जो रिएक्ट कराएंगे दैट इज अवर Cl+ आयन, जो कि हमारे फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ था, दैट इज अवर इलेक्ट्रोफाइल विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये टॉलिन के कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, ये एक्चुअली डिपेंड करता है ऑन दिस मिथाइल ग्रुप। जैसा कि हमने पिछले रिएक्शन में पढ़ा था कि बेंजीन के सारे कार्बन इक्विवेलेंट हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ये जो मिथाइल ग्रुप है इसके बारे में हमने 11th में पढ़ा था, इट इज एक्चुअली अ एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये एक्चुअली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बेंजीन के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे रोटेट करते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी बुलाते हैं। दैट मीन्स अब हमारा जो Cl+ है वो इस टॉलिन के आइदर ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशंस पे ही अटैक करेगा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन सब इलेक्ट्रॉन रिच होंगे और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नाउ यहां पे सपोज हम लोग ऑर्थो पोजीशन को कंसीडर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। सो जब हमारा Cl+ आयन ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो Cl+ जो है ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो चुका है और हमारा जो टॉलिन के जो बाकी पाई बॉन्ड्स हैं वो एज इट इज अपनी पोजीशन पे प्रेजेंट है, लेकिन हमारा जो ये पाई बॉन्ड है ये एक्चुअली ऑर्थो पे मूव हो चुका है टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू दी Cl+ आयन, जिसके कारण अब इस पोजीशन पे मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके कारण हम दो चीजें देख सकते हैं। पहला कि हमारा जो कार्बन था बेंजीन रिंग का, इसका हाइब्रिडाइजेशन इनिशियली sp2 था, लेकिन अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो चुका है। एंड सेकेंड थिंग, जो हमारा जो ये बेंजीन रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर है दैट इज एरोमेटिसिटी, ये लूज हो चुकी है। नाउ यहाँ पे हमारा जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ये नेबरिंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और हमारा जो सेकंड जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके अंदर हमारा पाई बॉन्ड यहाँ मूव हो जाएगा एंड पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे मूव हो जाएगा और बाकी जो बॉन्ड्स हैं जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे एज इट इज रह जाएंगे। नाउ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन है वो अगेन जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देन अगेन एक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण नया स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसके अंदर हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेक्स्ट पोजीशन पे जो कि इस मिथाइल पोजीशन वाले कार्बन पे मूव हो जाएगा एंड बाकी जो बॉन्ड्स हैं वो एज इट इज अपनी पोजीशंस पे रहेंगे, जो कि ये पोजीशंस हैं एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे एज इट इज रहेगा। नाउ ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा एक्चुअली दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नाउ इनके कॉम्बिनेशन से अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे सो इट कुड बी लाइक दिस कि हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो अपनी पोजीशन पे एज इट इज है, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम प्रेजेंट है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इवनली हमारे तीनों कार्बन पे रोटेट हो रहा है। दिस इज अवर अरेनियम आयन। नाउ ये जो अरेनियम आयन है ये थर्ड स्टेप में अपने अंदर से H+ रिमूव करेगा, दैट इज डीप्रोटोनेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन एंड अगेन अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को रिगेन करके ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा एंड वी विल गेट ऑर्थोक्लोरोटॉलिन। नाउ the third and the last step of this reaction mechanism, that is deprotonation reaction of अरेनियम आयन। तो यहाँ पे जो डीप्रोटोनेशन रिएक्शन होता है इसमें अरेनियम आयन अपने अंदर से एक H+ रिमूव करता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अरेनियम आयन को ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमने सेकेंड स्टेप में प्रोड्यूस किया था। तो इस अरेनियम आयन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑर्थो पोजिशन है यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम अटैच्ड है, जिसके कारण ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। अब इसके कारण ये जो कंपाउंड है ये अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को लूज कर देता है। सो टू रीगेन इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अगेन बेंजीन रिंग के अंदर अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ये हाइड्रोजन एटम जो है यहां से रिलीज हो जाएगा बाय फॉर्मिंग H+ आयन। इसी को हम लोग डीप्रोटोनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नाउ ये जो H+ आयन है अब इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ था FeCl4- आयन प्रेजेंट है। अब ये FeCl4- आयन जो है ये अपने अंदर से एक Cl- आयन डोनेट करेगा एंड ये जो प्रोटॉन प्रोड्यूस हुआ था दैट इज H+ एंड Cl- कंबाइन होके हमें प्रोडक्ट में HCl देंगे जो कि हमारा इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है। सो जो बाकी बचा हुआ कंपाउंड है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज अवर मेन प्रोडक्ट। It is CH3 and it contains now chlorine at ortho position, that is our ऑर्थोक्लोरोटॉलिन। अब जैसा कि इस रिएक्शन के स्टार्टिंग में मैंने ऑर्थो पोजीशन को कंसीडर किया था इसलिए हमें प्रोडक्ट में ऑर्थोक्लोरोटॉलिन मिला। अगर हम पैरा पोजीशन को कंसीडर करते तो हमें प्रोडक्ट में पैराक्लोरोटॉलिन भी मिल सकता था। दैट मीन्स वी कैन गेट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट।
और यहाँ पे Cl माइनस के रिमूवल के बाद जो FeCl4 माइनस था इट विल कन्वर्ट इनटू FeCl3, जो कि इस रिएक्शन का कैटालिस्ट है, जो कि अपने ओरिजिनल स्टेट में अगेन ऑब्टेन हो जाता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिएक्शन में कैटालिस्ट कंज्यूम नहीं होता, सिर्फ यूज होता है, ये अगेन अपने ओरिजिनल स्टेट में लास्ट में हमें मिल जाना चाहिए। सो दिस वाज द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर बेंजोनॉइड्स, जहां पे हम लोगों ने बेंजोनॉइड्स की हेल्प से हेलोअरीन प्रिपेयर किया। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। नाउ डाइअज़ोनियम salts are prepared by diazotization reaction. Now actually what is diazonium salt? So diazonium salt के अंदर आप देख सकते हैं di means 2, azo means nitrogen and am means it has positive charge in nature. So actually diazonium salt जो है ये दो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। नाउ अगर डाइअज़ोनियम सॉल्ट का जनरल फॉर्म देखेंगे देन इट विल बी RN2 प्लस एंड X माइनस। अब यहां पे जो X है दैट इज द हेलोजन। इसके अलावा और भी डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, फिलहाल हम लोग हेलोजन की बात करेंगे बिकॉज वी आर स्टडिंग हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। यहां पे जो N2 है दैट इज नाइट्रोजन, दैट इज 2 नाइट्रोजन एटम्स कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन 1 नाइट्रोजन। एंड यहां पे जो R ग्रुप है इट कैन बी अल्काइल ग्रुप दैट इज एलिफेटिक और एराइल ग्रुप दैट इज एरोमेटिक। नाउ एलिफेटिक अल्काइल ग्रुप के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे इन अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पे हम लोग एराइल डाइज़ोनियम क्लोराइड के बारे में डिस्कस करने वाले। नाउ इस रिएक्शन के जनरल फॉर्म को देखते हैं। सो यहां पे बोला जाता है कि व्हेन प्राइमरी अमाइंस लाइक एनिलीन आर रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइड एट लो टेम्परेचर दैट इज अराउंड 273 केल्विन टू 278 केल्विन, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। नाउ इस रिएक्शन के जनरल फॉर्म को देखते हैं। यहां पे हम देख सकते हैं कि एनिलीन को हम लोग रिएक्ट करते हैं सोडियम नाइट्राइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें प्रोडक्ट में बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट मिलता है। Along with that we will get sodium chloride salt and 2 molecules of water. Now इस रिएक्शन के सिंपल फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं जिससे हमें याद रखना इजी रहेगा। हम यहां देख सकते हैं कि सोडियम नाइट्राइड का एक एटम सोडियम का 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड ये दोनों कंबाइन होकर फॉर्म करेंगे सोडियम क्लोराइड। नाउ सिमिलरली यहां पे जो हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, ये 2 हाइड्रोजन एटम और ये एनिलीन के अंदर जो 2 हाइड्रोजन एटम है ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे दैट इज 4 हाइड्रोजन एटम सोडियम नाइट्राइड के 2 ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म करेंगे। नाउ जो बाकी रिमेनिंग एटम्स प्रेजेंट हैं दैट इज 1 नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन, 1 नाइट्रोजन ऑफ सोडियम नाइट्राइड एंड 1 क्लोरीन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीनों चीजें आपस में कंबाइन हो जाएंगी और फाइनली हमें बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा। नाउ ये इस रिएक्शन का एक सिंपल वर्जन है जो आपको याद रखने में इजी है, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन मैकेनिज्म इज कॉम्प्लिकेटेड जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ डाइअज़ोनियम सॉल्ट की एक प्रॉपर्टी है दैट इज दे आर अनस्टेबल, सो दे शुड बी यूज्ड इमीडिएटली फॉर अदर रिएक्शंस। नाउ यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वी आर डिस्कसिंग अबाउट एरोमेटिक अमाइंस। वाइल अगर हम प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस को यूज करते हैं डाइअज़ोनियम सॉल्ट बनाने के लिए देन दे विल प्रिपेयर अल्काइल डाइअज़ोनियम सॉल्ट विच इज हाईली अनस्टेबल एंड ये फर्दर हाइड्रोलिसिस करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी करेंगे। वाइल हम लोग जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वी आर स्टडिंग एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइन जो अरीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट बनाते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अब जैसा यहाँ देख सकते हैं कि ये एक डाइअज़ोनियम सॉल्ट है। अब इस डाइअज़ोनियम सॉल्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि दोनों नाइट्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर टर्मिनल नाइट्रोजन पे मूव हो जाएगा जिसके कारण उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड बेंजीन के अंदर से एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो नाइट्रोजन की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा एंड नेबरिंग कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड ये जो पोजीशन है इट इज ऑर्थो पोजीशन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्थो पोजीशन के पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए यहां से पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा जिसके कारण अब नया पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आ जाएगा।
एंड पैरा पोजीशन के पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए नया पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ मूव करेगा, जिसके कारण अब ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इवनली इन तीनों कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसे आप रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बुलाते हैं। सो ड्यू टू दिस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एलिफेटिक अमाइन के कंपैरेटिवली जो एरोमेटिक अमाइन से डाइएजोनियम सॉल्ट बनते हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल, सो दे कैन बी यूज्ड फर्दर। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। सो यहाँ पे हम लोग एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्म करने के रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। नाउ ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म इट इज एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड और ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो इनिशियली जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जहां पे हमारा नाइट्रोसोनियम इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नाउ यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होने वाला है दैट इज NO+, दिस इज अवर नाइट्रोसोनियम इलेक्ट्रोफाइल, जो कि एनिलीन पे अटैक करेगा। नाउ ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये एक्चुअली 2 स्टेप्स में फॉर्म हो रहा है। सो फर्स्ट स्टेप की बात करें, यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं कि सोडियम जो नाइट्राइट हमने यूज किया था एज अ कैटालिस्ट, इसको हम लोग यूज करेंगे NaNO2 और ये रिएक्ट हो जाएगा HCl के फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ। अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग 2 मॉलिक्यूल HCl का यूज करें, उसमें से एक मॉलिक्यूल इनिशियली सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करेगा एंड द रिवर्सिबल रिएक्शन इज पॉसिबल। सो यहाँ पे आपको मिलेगा HNO2, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट NaCl, जो कि आप देख सकते हैं कि बाई प्रोडक्ट है। नाउ सेकेंड स्टेप में आपका जो HNO2 फॉर्म हुआ था फर्स्ट स्टेप में, दैट इज दिस मॉलिक्यूल, ये रिएक्ट करेगा HCl के सेकेंड मॉलिक्यूल से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यहाँ पे 2 HCl यूज किया था, तो फर्स्ट HCl जो है वो A रिएक्शन में यूज हुआ, देन सेकेंड मॉलिक्यूल जो HCl का वो B रिएक्शन में यूज हो रहा है एंड दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल इन नेचर। और इसकी मदद से आपको मिलेगा H2O का एक मॉलिक्यूल, जो कि आपके बाई प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। अलॉन्ग विद दैट आपको मिलेगा NO+, जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जो आपके सेकेंड स्टेप में एनिलीन के ऊपर अटैक करेगा एंड अलॉन्ग विद दैट आपको एक और आयन मिलेगा दैट इज Cl-, जो कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में आप देखते हैं प्रेजेंट होता है। So this was the first step of this diazotization reaction. Now, the second step of this reaction mechanism is attack of electrophile. Now जो electrophile हमारा फॉर्म हुआ था that is नाइट्रोसोनियम इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा एनिलीन पे, और क्योंकि एनिलीन के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोसोनियम आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे दैट इज आवर इंटरमीडिएट कंपाउंड। नाउ इस रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। सो यहाँ पे इनिशियली हमारा एनिलीन को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ दिस इज एनिलीन। नाउ इस एनिलीन के NH2 ग्रुप के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसको हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। नाउ ये रिएक्ट करेगा नाइट्रोसोनियम आयन के साथ, तो नाइट्रोसोनियम आयन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आवर नाइट्रोसोनियम आयन, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नाउ यहां से एनिलीन में से नाइट्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस पॉजिटिव नाइट्रोजन को डोनेट करेगा। नाउ इसके कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनेगा उसका स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस, कि एनिलीन जो है एज इट इज होगा और यहां से NH2 ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन को डोनेट किया है, जिसके कारण इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और बाकी ऑक्सीजन एटम एज इट इज रहेगा। और क्योंकि एनिलीन में से NH2 ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया है, इसलिए इसके ऊपर नाउ पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट सब स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होगा, जहां पे हमारा जो कंपाउंड बना था फर्स्ट स्टेप में दैट इज दिस कंपाउंड NH2 हैविंग पॉजिटिव चार्ज कनेक्टेड विथ NO। नाउ यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा NH2 ग्रुप है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए नाइट्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण यहाँ से एक H+ आयन रिमूव होगा दैट इज प्रोटॉन। नाउ इस H+ आयन को यहाँ से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और अपने साथ अटैच करेगा। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग और यहाँ पे अब हमारा NH2 ग्रुप में से एक H रिमूव हो गया तो NH बचा और H का इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे अगेन आ चुका है। नाउ इट इज कनेक्टेड विद नाइट्रोजन हैविंग 1 पेयर एंड इट इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर उसने हाइड्रोजन को देके अपने साथ जोड़ दिया है। नाउ दिस ऑक्सीजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज।
अब क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करना नहीं चाहता, इसलिए वो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण यहाँ से एक बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगा। नाउ इसको बैलेंस करने के लिए ये NH2 ग्रुप अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, वी विल गेट अनदर कंपाउंड विच विल बी लाइक दिस, यहाँ पे बेंजीन रिंग, और यहाँ पे हमारे पास NH होगा, और यहाँ पे हमारा जो एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन दिस एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर जो जा चुका है, नाउ इस नाइट्रोजन पे अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर और एक्स्ट्रा ले लिया है, इसलिए उसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, और इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। नाउ जो प्रीवियस स्टेप में कंपाउंड बना था, उस कंपाउंड का अगेन प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो हमारा कंपाउंड था लाइक दिस। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था। ना ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग नाइट्रोजन इस नेबरिंग हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा टू रिमूव इट्स पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये H+ बन के रिमूव हो जाएगा। नाउ इस H+ को ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जिसके कारण हमारा जो नया कंपाउंड बनेगा इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे हमारा जो नाइट्रोजन है, इसने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन बचा, और क्योंकि इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर लिया, नाउ इसके पास अपने पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नाउ इट इज कनेक्टेड विद अनदर नाइट्रोजन, एंड दिस नाइट्रोजन इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, एंड नाउ दिस ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विद 2 हाइड्रोजन्स, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसने H+ को डोनेट किया था। नाउ इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। नाउ ये जो ऑक्सीजन है पॉजिटिव चार्ज कैरिंग, ये नेबरिंग नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ये बॉन्ड यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट होने के बाद यहाँ से आपको मिल जाएगा एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में देखा था, एंड दिस इज द सेकंड वाटर मॉलिक्यूल जो कि आपको बाय प्रोडक्ट में मिलता है। बाकी जो आपका कंपाउंड बचेगा दैट विल बी दिस नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर जा चुका है ऑक्सीजन के पास, नाउ इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। नाउ फाइनली आपका जो कंपाउंड बचा दैट इज N double bond N, and this nitrogen contains positive charge and it has a lone pair of electron. Now ये अपना जो lone pair of electron है ये सेकेंड नाइट्रोजन की तरफ मूव करेगा, जिसके कारण आपका जो नया कंपाउंड बनेगा इट विल बी लाइक दिस N ट्रिपल बॉन्ड N, इट कंटेन्स नाउ लोन पेयर, और इसका पॉजिटिव चार्ज जा चुका है। नाउ दिस नाइट्रोजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। नाउ जैसा कि आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट स्टेप में हमें Cl- मिला था, नाउ दिस Cl- यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और आपका जो फाइनल कंपाउंड बनेगा दैट विल बी N ट्रिपल बॉन्ड N, एंड यहाँ पे आपका Cl- कनेक्टेड है, एंड दिस इज प्लस। नाउ दिस इज योर BDC, दैट इज बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट। Preparation of chlorobenzene or bromobenzene by Sandmeyer reaction. So, by the diazodization reaction, we prepared benzene diazonium chloride. Now, this diazonium salt is reacted with copper halide in the presence of halogen acid to prepare aryl halide. जैसा कि हम देख सकते हैं कि डाइअज़ोनियम सॉल्ट को अगर हम रिएक्ट करते हैं क्यूपरस क्लोराइड दैट इज कॉपर 1 क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, then we will get chlorobenzene. सिमिलरली अगर हम डाइअज़ोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करते हैं क्यूपरस ब्रोमाइड दैट इज कॉपर 1 ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, we will get bromobenzene. And these two reactions are known as Sandmeyer reaction. Actually Sandmeyer reaction में एक और रिएक्शन इंक्लूडेड है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ साइनोबेंजीन, बट इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग ओनली प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स, सो हम इस रिएक्शन को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ इस रिएक्शन के जनरल फॉर्म को देख सकते हैं कि व्हेन BDC इज रिएक्टेड विद कॉपर हैलाइड, नाउ ये जो हेलोजन है इट कुड बी क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड, वी विल गेट क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन along with नाइट्रोजन गैस। नाउ यहाँ के रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl दैट इज कॉपर 1 क्लोराइड। वी कैन ऑल्सो यूज Cu2Cl2। अब यहाँ पे भी कॉपर +1 स्टेट में ही है, यहाँ पे सिर्फ ये CuCl का डाइमर है, सो हम दोनों यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज CuCl और Cu2Cl2। नाउ प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट में वी विल गेट क्लोरोबेंजीन, और यहाँ से जो N2 है ये N2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं CuBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HBr,
we can also use Cu2Br2, that is a dimer of CuBr. Then we will get product bromobenzene and nitrogen gas is released. Now ये जो रिएक्शन है एक्चुअली ये 2 स्टेप्स में होता है. द फर्स्ट स्टेप इज SET, जिसे हम लोग बुला सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये स्टार्ट होता है फ्रॉम कॉपर. यहाँ पे जो कॉपर क्लोराइड है ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग नाइट्रोजन को डोनेट करता है, जिसके कारण कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाता है. इट कन्वर्ट्स फ्रॉम +1 टू +2. तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इट विल बी CuCl हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज. नाउ दिस कॉपर इज +2. नाउ यहाँ पे जो BDC है यहाँ से Cl- आयन रिलीज होगा और ये Cl- आयन दिस कॉपर के साथ कनेक्ट हो जाएगा. तो फाइनली आपको मिल जाएगा Cu, Cl एंड Cl. और यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा इट विल बी लाइक दिस कि आपके बेंजीन पे नाउ ओनली नाइट्रोजन रेडिकल प्रेजेंट है. नाउ इसके बाद आपका जो सेकेंड स्टेप होता है दैट इज फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन. यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल नाइट्रोजन रेडिकल को सब्सटीट्यूट करने वाला है. तो ये कैसे होता है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो कॉपर +2 था दैट इज CuCl2, इसका होमोलाइटिक फ्यूजन होगा और अगेन CuCl फॉर्म हो जाएगा जो कि आपका कैटालिस्ट था और यहाँ से एक Cl रेडिकल रिलीज होगा. नाउ यहाँ पे जो हमारे बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन रेडिकल है इसका भी होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, जिसके कारण यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा जो कि आपको प्रोडक्ट में मिलता है. और इस नाइट्रोजन रेडिकल को सब्सटीट्यूट करेगा क्लोरीन रेडिकल, जिसके कारण आपको प्रोडक्ट में क्लोरोबेंजीन मिलेगा. दैट मीन्स ये रिएक्शन एक्चुअली 2 स्टेप में होता है. पहले आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है जिसके अंदर कॉपर जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग नाइट्रोजन को डोनेट करता है, जिसके कारण नाइट्रोजन रेडिकल फॉर्म करता है और बाद में यही रेडिकल यहाँ से रिमूव हो जाता है टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस. और जो हमारा कॉपर क्लोराइड फॉर्म हुआ था +2 वाला, यहाँ से एक क्लोरीन रेडिकल रिलीज होता है जो इस नाइट्रोजन को सब्सटीट्यूट करता है. सो बाय दिस वी विल गेट क्लोरोबेंजीन इन द प्रोडक्ट. इन दिस सेम वे हम लोग ब्रोमोबेंजीन भी ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट. और यहाँ पे भी रिएक्शन हमारा 2 स्टेप में होगा. दैट इज फर्स्ट स्टेप विल बी सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड सेकेंड स्टेप इज फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. लेकिन यहाँ पे जो फ्री रेडिकल होगा दैट विल बी Br रेडिकल, जो यहाँ पे नाइट्रोजन रेडिकल को सब्सटीट्यूट करेगा बिकॉज वी विल गेट ब्रोमोबेंजीन. सो दिस इज योर सैनमेयर रिएक्शन वेयर वी प्रिपेयर्ड क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बाय BDC. Preparation of iodobenzene from benzene diazonium chloride. Now, iodobenzene is obtained by reacting freshly prepared benzene diazonium chloride with potassium iodide at high temperature. Now, आप जैसा कि जानते हैं कि आयोडोबेंजीन को हम लोग डायरेक्टली बेंजीन से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग क्लोरीनेशन करके क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं बेंजीन से, या फिर हम ब्रोमिनेशन करके ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं बेंजीन से. बट वी कैन नॉट प्रिपेयर आयोडोबेंजीन बाय डायरेक्ट आयोडिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. सो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है. वी विल यूज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Ki at high temperature, then we will get iodobenzene, and along with that we will get nitrogen gas and KCl as a byproduct. Now इस रिएक्शन के सिंपल मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं. सो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को हम रिएक्ट कर रहे हैं Ki के साथ. Now यहाँ पे जो Cl है यहाँ से Cl- रिमूव होगा और Ki में से K+ जो है वो Cl- के साथ कंबाइन होके KCl फॉर्म करेगा. और यहाँ पे जो नाइट्रोजन कनेक्टेड है विथ दिस बेंजीन रिंग, ये N2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा इन द प्रोडक्ट और उसकी जगह आयोडीन जो है वो बेंजीन रिंग पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा. देन वी विल गेट आयोडोबेंजीन. नाउ ये जो प्रोडक्ट है आयोडोबेंजीन ये डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं हो सकता था बेंजीन से, सो हमने यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट की हेल्प से आयोडोबेंजीन प्रिपेयर किया. नाउ इसमें एक और बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन हमने स्टडी किया, दिस रिएक्शन इज नॉट कंसिडर्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन, क्योंकि सैंडमेयर रिएक्शन में हमने क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर करना सीखा, वहां पे हमने आयोडोबेंजीन प्रिपेयर नहीं किया. सो दिस रिएक्शन इज डिफरेंट रिएक्शन, इसे आप सैंडमेयर रिएक्शन में कंसिडर मत करिएगा. प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बाय गेटरमैन रिएक्शन. नाउ दिस गेटरमैन रिएक्शन इज वेरी सिमिलर टू सैंडमेयर रिएक्शन,
बिकॉज यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली सेम बनते हैं और रिएजेंट में सिर्फ एक चेंज आता है, दैट इज आप सैंडमर रिएक्शन में कॉपर हैलाइड यूज कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ दैट आपको यहाँ पे कॉपर पाउडर यूज करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ रिएक्शन में हम लोग बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कर रहे हैं HX के साथ। नो यहाँ पे HX क्या हो सकता है, इट कुड बी हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। जो आप वहां पे यूज कर रहे थे कॉपर हैलाइड, उसकी जगह आपको यहाँ यूज करना है कॉपर पाउडर, और आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, यू विल गेट हेलो अरेन, दैट इज क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, along with that you will get nitrogen gas and copper chloride as a बाई प्रोडक्ट। नाउ इस रिएक्शन के सिंपल मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं जो आपको याद रखने में इजी रहेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड है इसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ। नाउ इनिशियली जो हमारा जो यहाँ पे नाइट्रोजन कनेक्टेड है N2, ये गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। नाउ यहाँ पे जो Cl- आयन है ये कॉपर के साथ कंबाइन होके कॉपर क्लोराइड बना देगा, एंड यहाँ पे जो HCl के पास क्लोरीन प्रेजेंट है, दैट क्लोरीन विल अटैच विद बेंजीन रिंग और आपको प्रोडक्ट में मिलेगा क्लोरोबेंजीन। नाउ इन द सेम वे अगर हम लोग बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। नाइट्रोजन जो है यहाँ से N2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा जो कि आपको मिलेगा इन द साइड ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे जो Cl- आयन प्रेजेंट है ये कॉपर के साथ कनेक्ट होके CuCl बनाएगा इन द प्रोडक्ट, और आपके HBr के साथ जो यहाँ पे Br प्रेजेंट है ये बेंजीन रिंग पे अटैच होके आपको प्रोडक्ट में ब्रोमोबेंजीन देगा। सो दिस वाज गेटरमैन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन बाय बाल-स्कीमन रिएक्शन। As we know that कि बेंजीन का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं, बिकॉज द रिएक्शन इज वेरी वायलेंट इन नेचर एंड इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इजली। सो टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन वी विल यूज बाल-स्कीमन रिएक्शन। In बाल-स्कीमन रिएक्शन we react benzene diazonium chloride salt with fluoroboric acid, and by this reaction it will produce diazonium fluoroborate salt, that is benzene diazonium fluoroborate salt. And when we heat this salt, it undergoes thermal decomposition and it will release nitrogen gas. It will produce BF3 as a byproduct, and we will get our main product, that is fluorobenzene. Now this reaction is more convenient than the direct fluorination reaction of benzene. Now इस रिएक्शन के सिंपल मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं which could be easy for understanding. Now यहाँ पे हमारा बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। नाउ फ्लोरोबोरिक एसिड रिलीज करेगा इनिशियली दो आयंस, दैट इज वन इज H+ एंड सेकंड वन इज BF4-। नाउ यहाँ से जो H+ आयन है इट विल रिएक्ट विद द Cl- आयन ऑफ बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड एंड इट विल रिलीज HCl एज अ बाई प्रोडक्ट। नाउ ये जो BF4- आयन है it will combine with this N2+ and it will produce an intermediate compound, that is benzene diazonium fluoroborate. Now when this benzene diazonium fluoroborate is heated, it undergoes thermal decomposition reaction, and during this decomposition reaction nitrogen gas is released in the product side and one F- ion attached with the benzene ring to produce fluorobenzene, and the remaining product is BF3. So this is the reaction by which we can easily produce fluorobenzene from benzene diazonium chloride by Bahl-Schiemann reaction. Preparation of iodoalkane by halogen exchange reaction. So iodoalkanes can be obtained by the reaction of bromoalkane or chloroalkane with the solution of sodium iodide prepared in dry acetone, and this reaction is known as Finkelstein reaction, which is a organic name reaction. Now इस reaction के अंदर हम लोग हेलोआल्केन को रिएक्ट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ in the presence of dry acetone, and we will get iodoalkane in product along with sodium halide, and this sodium halide can be sodium chloride और सोडियम ब्रोमाइड। नाउ इस रिएक्शन के
फिजिबिलिटी को स्टडी करते हैं, यहाँ पे जो सोडियम आयोडाइड है इट इज डिजॉल्व्ड इन ड्राई एसीटोन. नाउ वी नो दैट कि ड्राई एसीटोन जो है इट इज अ एप्रोटिक सॉल्वेंट. नाउ यहाँ पे जो सोडियम आयोडाइड है इट इज अ आयनिक कंपाउंड, बट एज पर फजान्स रूल sodium cation is small in size and iodine anion is large in size. So due to this difference in size, as per Fajans rule, sodium iodide has more covalent nature. So because of which we can say that it is more soluble in dry acetone. Now when this sodium iodide is dissolved in acetone, it will produce two ions, that is Na plus and I minus. Now this I minus ion will go to alkane and it will substitute X minus ion from here, and this X minus ion will move to sodium ion and they will combine to form sodium halide, which is obtained in the product, that means sodium chloride or sodium bromide, and this iodine and this alkyl group will combine to form iodoalkane, that is our main product. Now this reaction occurs by SN2 mechanism. So that means यहाँ पे अगर हम प्राइमरी हेलोअल्केन यूज करेंगे then the reaction will be fast. If we use secondary haloalkane then reaction will be slow, and if we use tertiary haloalkane then that means the reaction is not feasible. Now यहाँ पे रिएक्शन की एक और खास बात है कि यहाँ पे जो हम हेलोअल्केन यूज कर रहे हैं इट कैन बी RCl और RBr, और जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी RI. नाउ एज वी नो दैट कि जो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्टेबिलिटी की बात करें देन क्लोरीन या ब्रोमीन के जो बॉन्ड्स हैं विथ अल्काइल ग्रुप दे आर मोर स्ट्रॉन्गर. सो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है थर्मोडायनेमिकली, बट यहाँ पे एक्चुअली इस रिएक्शन को फिजिबल बना रहा है दिस एसीटोन, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज सोडियम हैलाइड, दैट इज सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, दे आर मोर आयनिक. That means they are insoluble in this acetone. Now due to this we can say that कि जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा this product will be in precipitate form, और इस precipitate को हम लोग continuously यहाँ से रिमूव करते हैं from the product side, because of which concentration product का हमेशा less रहेगा, and as per Lee-Chatelier's principle reaction forward direction में move करेगा and we will get more product, that is iodoalkane. नाउ इस रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स को स्टडी कर लेते हैं. इन फर्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हैं कि क्लोरोमीथेन को रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो यहां से क्लोरीन सोडियम के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड दे विल प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट, और यहां पे जो मिथाइल ग्रुप है उसके साथ आयोडीन कंबाइन हो जाएगा एंड वी विल गेट आयोडोमीथेन एंड द एसीटोन इज अवर सॉल्वेंट. सिमिलरली इन सेकेंड रिएक्शन आप देख सकते हैं ब्रोमो इथेन को रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन and we will get iodoethane along with sodium bromide. तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है ये Br माइनस के फॉर्म में सोडियम के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस NaBr, और ये आयोडीन जो है ये इथाइल ग्रुप के साथ कंबाइन होके आयोडोइथेन प्रोड्यूस करेगा. सो दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन वेयर हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस टेक प्लेस, और इसे हेलोजन एक्सचेंज इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी अवेलेबल हेलोजन दैट इज क्लोराइड या ब्रोमाइड हेलोजन को हम लोग आयोडाइड हेलोजन से सब्स्टिट्यूट करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं. प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोअल्केन बाय हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. सो व्हेन ब्रोमोअल्केन और क्लोरोअल्केन लाइक ब्रोमोमीथेन और क्लोरोमीथेन आर रिएक्टेड विथ मेटालिक फ्लोराइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स लाइक सिल्वर फ्लोराइड, मर्कुरस फ्लोराइड और कोबाल्ट फ्लोराइड, और व्हेन दे आर रिएक्टेड विथ antimony trifluoride, we will get fluoroalkane like fluoromethane as our main product, and we will get metallic bromide or metallic chloride like silver bromide or mercurous bromide or cobalt bromide as our byproduct. And this reaction is also a organic name reaction which is known as Schwarz reaction. Now it is also similar to Finkelstein reaction because it is also a halogen exchange reaction. Now इन रिएक्शंस में हम लोग एक्चुअली ब्रोमाइड या क्लोराइड हेलोजन को फ्लोरीन से एक्सचेंज करते हैं, एंड दिस रिएक्शन आल्सो अकर्स बाय SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट मींस इट इज आल्सो अ वन स्टेप रिएक्शन. नाउ इस रिएक्शन के अंदर हम जानते हैं कि इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी फॉर
प्राइमरी हेलो अल्केन एंड ये स्लो होगी फॉर सेकेंडरी हेलो अल्केन एंड इट इज वेरी लेस विजिबल फॉर टर्जरी हेलो अल्केन्स। नाउ इस रिएक्शंस के अंदर हम लोग सिंपल मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ब्रोमोमीथेन को सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। नाउ सिल्वर फ्लोराइड इज अ ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट में फ्लोरोमीथेन मिलता है, दैट इज आवर मेन प्रोडक्ट एंड वी विल गेट सिल्वर ब्रोमाइड एज अ बाय प्रोडक्ट। नाउ यहाँ पे रिएक्शन बहुत सिंपल है, यहाँ से एक्चुअली Br माइनस न्यूक्लियोफाइल रिलीज होता है। नाउ इस Br माइनस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है F माइनस न्यूक्लियोफाइल जो कि हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नाउ यहाँ पे जो Br माइनस आयन फॉर्म हुआ इट कंबाइंस विद सिल्वर आयन एंड इट विल प्रोड्यूस सिल्वर ब्रोमाइड एज अवर बाय प्रोडक्ट और F माइनस आयन अल्काइल ग्रुप के साथ कंबाइन होकर फॉर्म करता है फ्लोरोमीथेन। सो दिस इज अवर मेन प्रोडक्ट। नाउ एक क्वेश्चन इसमें और अराइज होता है कि व्हाई डोंट वी यूज अल्कली फ्लोराइड्स लाइक सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड एज अवर रिएक्टेंट। एक्चुअली व्हेन वी यूज सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड इंस्टेड ऑफ ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड, possibility of reaction is very less, so we will get very less proportion of product in our right hand side. So instead of that we will prefer transition metal fluorides for this reaction. And actually हम लोग इस reaction के अंदर transition metal fluorides के साथ इसलिए react कर रहे हैं because they are fluorinating agents. Actually fluorine cannot be directly react with alkanes because fluorine is very reactive and very electronegative element. और अगर हम इनको अल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करने जाएंगे तो ये एक्चुअली HF फॉर्म करेगा इंस्टेड ऑफ फ्लोरोअल्केन्स। सो दिस स्वार्ट्ज रिएक्शन इज कंपैरेटिवली मोर इजी फॉर द फ्लोरिनेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो वी स्टडीड द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरेन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। द फर्स्ट प्रिपरेशन वाज फ्रॉम बेंजीन वेयर वी यूज्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन और benzenoids. As we know that we studied the preparation of haloarenes like bromobenzene or chlorobenzene from benzene by halogenation reaction. We also studied the halogenation reaction of toluene. Then we studied the preparation of haloarenes from benzene diazonium chloride. Here we studied three reactions. The first was Sandmeyer reaction where we prepared chlorobenzene or bromobenzene by benzene diazonium chloride using Sandmeyer reagent, that is cuprous chloride and mixture of HCl or cuprous bromide and mixture of HBr. The second preparation was Gattermann reaction where we also prepared chlorobenzene or bromobenzene from benzene diazonium chloride using copper powder with HCl or HBr. And the last one was Ball-Schiemann reaction where we prepared fluorobenzene from benzene diazonium chloride. At first we react benzene diazonium chloride with HBF4 and we will get benzene diazonium fluoroborate, and after that we do thermal decomposition and we will get fluorobenzene along with nitrogen and BF3. And at last we studied halogen exchange reaction where we studied two reactions. The first was Finkelstein reaction where we prepared iodoalkanes from chloroalkanes or bromoalkane when it is reacted with sodium iodide in the presence of dry acetone. And the second halogen exchange reaction was Schwartz reaction where we prepared fluoroalkanes from chloro or bromoalkanes by reacting them with transition metal fluorides like silver fluoride, mercurous fluoride or cobalt fluoride. So students, if you have any doubt in today's topic, you can ask me in the comment section. You can download the assignment related to today's topic from the link given in the description section. If you found this video useful, then please like the video and share it with others also. So students, that's all for today. See you in the next video. Till then, keep learning, keep revising and keep practicing.